اور میں خداوند کے گھر میں آج خداوند کی عبادت اور پرستش کے لیے آپ تمام کو خداوند کے گھر میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ میرا ایمان ہے کہ ہمارا خداوند اپنے وعدے کے مطابق آج ہمارے درمیان ہے۔ میں اپنے دونوں بھائی جو انڈیا سے ہیں انہیں بھی خاص طور پر خوش آمدید کہتا ہوں، اور خوشی ہے کہ آج آپ ہمارے ساتھ مل کر عبادت میں شامل ہیں۔ میں آج جو بات کرنا چاہتا ہوں وہ ہے مکاشفہ کی کتاب کے پہلا باب اور اس کی 5ویں آیت، اور میں چاہوں گا کہ آپ اسے نکالیں ہیں۔ مکاشفہ کی کتاب پہلا باب اور اس کی 5ویں آیت۔ اوکے، بیٹھو کچھ نہیں ہوتا، اس کو اگر ڈاکٹر کی ضرورت ہوگی تو لے کے چلتے ہیں، دعا کرتے ہیں۔ اوکے، اس میں لکھا ہے، اگر آپ کے پاس بائبل مقدس ہے میرے ساتھ کھولیں، لکھا ہے اور یسوع مسیح کی طرف سے جو سچا گواہ اور مردوں میں سے جی اٹھنے والوں میں پلوٹا اور دنیا کے بادشاہوں پر حاکم ہے، تمہیں فضل اور اطمینان حاصل ہوتا رہے، جو ہم سے محبت رکھتا ہے اور جس نے اپنے خون کے وسیلہ سے ہم کو گناہوں سے خلاصی بخشی۔ خدا کے کلام کے پڑھے اور سنے جب خدا آمین۔ ذرا آج جو بات ہم جاننا چاہتے ہیں وہ یہ ہے، یہاں لکھا ہے کہ یسوع مسیح جو سچا گواہ ہے، وہ کس کی گواہی دینے آیا؟ کہ باپ کی، اور وہ باتیں جو ضروری تھی وہ ہم پر ظاہر کرتا ہے۔ سچا گواہ ہے، سچائی کی گواہی دینے آیا ہے، کہتا ہے کہ یسوع مسیح وہ ہے جو مردوں میں سے جی اٹھنے والوں میں پلوٹا ہے۔ اس پر آج میں زیادہ تر بات کرنا چاہتا ہوں تھوڑی دیر کے لیے، چند لمحے آپ کے ساتھ۔ مردوں میں سے جی اٹھنے والوں میں پلوٹا، یہ جو پلوٹا ہے وہ کون ہوتا ہے؟ پہلا ہے نا، ٹھیک ہے جی۔ پلوٹا کسے کہا جاتا ہے؟ پہلا جو ہوتا ہے اسے پلوٹا کہا جاتا ہے۔ کلام مقدس میں جب یسوع مسیح کو یہ کہا گیا ہے کہ وہ مردوں میں سے جی اٹھنے والوں میں پلوٹا ہے، تو کیا اس سے پہلے کوئی مردے زندہ ہوئے؟ دیکھیں اگر ہم دیکھیں تو یسوع مسیح نے یائر کی بیٹی کو زندہ کیا، رائٹ؟ یسوع مسیح نے لازر کو زندہ کیا، ہے نا، ٹھیک ہے۔ یسوع مسیح نے ایک بیوہ کی بیٹے کو بھی زندہ کیا۔ اگر ہم جانیں تو ایلیا اور ایلیا کا جو شگرد تھا الیشا کی قبر میں جب انہوں نے مردہ رکھا تو اس کی ہڈیوں سے مردہ لگنے کے بعد زندہ ہوا۔ کلام مقدس میں یہ بات ہے پائی جاتی ہے نا۔ اور ثبوت ملتے ہیں جیسے کہ ایلیا نے ایک مردہ نوجوان کو جو مر گیا تھا، بچہ تھا، اسے بھی خداوند کی قدرت سے زندہ کیا۔ کلام مقدس میں ہمیں اس لیے میں باتیں بتا رہا ہوں کہ کئی واقعات ہیں جو واقعات یہ کہتے ہیں کہ جو مر گئے تھے وہ زندہ ہوئے۔ انفیکٹ کہ یسوع مسیح خود جو ہے وہ مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ پھر کلام مقدس یہ کیوں کہتا ہے کہ یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھنے والوں میں پلوٹا ہے؟ پہلا بات تو سوچنے والی ہے نا، غور کرنے والی ہے، جاننے کی ضرورت ہے کہ یسوع مسیح پلوٹا کیسے ہے۔ کلام مقدس کہتا ہے کہ گناہ کی مزدوری موت ہے۔ کلام مقدس میں لکھا ہے نا، رومیو کتاب 6 باب کی 23 آیت کہتی ہے گناہ کی مزدوری موت ہے، مگر ہمارے خداوند یسوع مسیح میں ہمیشہ کی زندگی۔ اب دیکھیے گا، میں چاہتا ہوں کہ اس بات گناہ کی مزدوری موت ہے،
کلام مقدس میں رومیو ہی کی کتاب کے 5ویں باب کی 12ویں آیت میں لکھا ہے کہ آدم نے گناہ کیا اور آدم کے گناہ کی وجہ سے موت دنیا میں آئی اور یہ موت سب آدمیوں میں پھیل. رومیو 5:12 میں یہ بات ہے. ٹھیک ہے. خدا نے جب آدم اور حوا کو باغ عدن میں رکھا، پیدائش کی کتاب کے 2 باب کی 17ویں آیت یہ کہتی ہے خدا نے وہاں یہ کہا کہ جس روز تم اس کا پھل کھاؤ گے تم مر جاؤ. ٹھیک ہے جی، یہ بات بڑی واضح طور پہ وہاں آتی ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ کیونکہ یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھنے والوں میں پلوٹا ہے، تو کیسے ہمیں جاننا ہے کہ گناہ کی وسیلہ سے جو موت ہے وہ موت کلام مقدس میں کیا ہے. پہلی بات جو ہم نے پیدائش کی کتاب میں ابھی ہم نے نوٹ کیا 2 باب کی 17 آیت، ٹھیک ہے، لکھا ہے کہ جس روز تم نے اس کا پھل کھایا تم مرے. 3 چیپٹر میں، پیدائش کے 3 چیپٹر میں ہم دیکھتے ہیں کہ حوا نے پھل لیا، حوا نے کھایا. ٹھیک ہے، حوا نے وہ پھل اپنے شوہر کو دیا، لکھا اس نے بھی کھایا. 3 باب یہ بات کرتا ہے. ٹھیک ہے، اب دونوں نے کھا لیا. 3 باب کی 9ویں آیت کہتی ہے کہ ٹھنڈے وقت میں جب خدا ان سے ملنے کے لیے آیا اپنی باقاعدہ روٹین کے مطابق، تو جب انہیں ملنے کے لیے اپنی باقاعدہ روٹین کے مطابق آتا ہے تو لکھا ہے کہ حوا اور آدم خدا کے آنے کے وقت چھپ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اور خداوند نے وہاں کہا کہ اے آدم تو کہاں ہے. بات تو یوں ہوئی کہ نافرمانی کی، گناہ کیا، لیکن موت ان پر واضح نہ آئی، وہ زندہ ہی ہے. لیکن کیا ہوا کہ اب وہ خدا کا سامنا نہیں کر سکتے، ہے نا. پہلے وہ خدا سے ملتے، بات چیت کرتے، کیونکہ باغ عدن میں خدا ان سے ٹھنڈے وقت میں آتا اور ملتا. ہم جاتے ہیں 3 باب میں پھر ان پر خدا نے جو مصیبتیں گناہ کی وجہ سے ہیں انہیں لکھا. اور 3 باب کی اگر 21ویں آیت دیکھیں، میں جاؤں گا پیچھے ذرا صرف آیات کو کلیئر کرنے کے لیے کیونکہ میں مس نہ کروں کہ صحیح آیت بول رہا ہوں کہ دوسری. یہاں اس کی 19ویں آیت میں لکھا ہے، اب ذرا غور سنیے گا. یہاں لکھا ہے 19ویں آیت میں، تو اپنے منہ کے پسینے کی روٹی کھائے گا جب تک کہ زمین میں تو پھر لوٹ نہ جائے، اس لیے کہ تو اس سے نکالا گیا ہے، کیونکہ تو خاک ہے اور خاک میں پھر لوٹ جائے گا. میں چاہتا ہوں کہ اس بات پہ غور کریں. ابھی وہ مرا نہیں ہے. What do we find? ابھی وہ مرا نہیں ہے. خدا کہتا ہے کہ جب تک تو واپس نہیں لوٹ جاتا تجھ پر مصیبتیں دکھ آئیں گے. اور آگے ہم دیکھتے ہیں اور پھر کیا ہو. اسے کہتے ہیں کلام مقدس کی روح سے کہ اس میں خدا میں جدائی آ گئی. اب وہ خدا کے ساتھ نہیں ٹھہر سکتا تھا. روحانی طور پر اس کی موت واقع ہو. جو خدا پاکیزگی میں اس میں تھا اور اس کو کبھی موت نہیں آنی تھی، اب وہ گناہ کی وجہ سے اس لنک سے ہٹ گیا اور اب اس میں کیا آ گئی ہے؟ موت کا، نافرمانی کا عنصر آ گیا، گناہ کا عنصر آ گیا اور وہ مرے گا. لیکن اس سے پیشتر وہ روحانی طور پر خدا سے دور ہو گیا اور یہ اسے روحانی موت کہا گیا. لیکن اس موت میں اسے یہ وقت دیا گیا کہ وہ دوبارہ خدا کے ساتھ بحال ہو سکے. اور وہ اس کو جس کو روحانی موت کہا گیا ہے، یہ کلام مقدس میں پہلی وہ موت ہے جو ہم سب جب گناہ کرتے ہیں تو ہم پر ہے. دیکھیں، ایک تو موت یہ لکھی گئی نا وہاں کہ آدم نے، میں نے پڑھا کہ رومیو 5:12 میں آدم نے گناہ کیا اور یوں موت سب پر آ گئی. آدم کی وجہ سے سب پر آ گئی اور سب مرے. ٹھیک ہے نا؟ 5:12 رومیو کی کتاب میں یہ بات لکھی ہوئی ہے. اب میں چاہتا ہوں کہ یہی بات آپ اور میں یہ سوچیں کہ ایک تو اس نے گناہ کیا، اس کو معروسی گناہ کے طور پر بھی کہا جاتا ہے. اسے کہتا ہے
दाऊद कहते हैं कि गुनाह की हालत में मैं अपनी मां के पेट में पड़ा और मैंने जन्म लिया। ठीक है, यानी कि कहता है कि ये हमारे नस्ल दर नस्ल एक आदम, लफ्ज आदम जो है अब्रानी का लफ्ज है और ये जमा का सीगा है और इसका मतलब है कुल कायनात की के आदमी उसमें पिन्हा थे, छुपे हुए थे और उसमें से निकले हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं देने लगा हूं, प्लीज पे अटेंशन। एग्जाम्पल क्या है? आदम बनाया गया, आदम में से हवा निकाली गई, है ना? हवा और आदम के मिलने से काइन और हाबिल, है ना, पैदा हो। दोबारा मैं कहूंगा, सुनिए जरा, ये बड़ा अहम बात है। कौन सबसे पहले बनाया गया? आदम। आदम को सलाकर उसकी पसली में से हवा को निकाल दिया और उसने कहा कि ये अब क्या है? नारी है, और उसका नाम हवा रखा ना। और हवा और आदम के 4 बाप की पहली आयत देख लेने क्या, और आदम अपनी बीवी हवा के पास गया और वह हामला हुई और उसके काइन पैदा हुआ। 4 बाप की पहली आयत में लिखा है। और उसने कहा, खुदा कहा मुझे खुदावन से एक मर्द मिला। अब देखें, पर इसी तरीके से निजाम खुदा ने चलाया और आगे सारे कायनात के लोग आए। तो कलाम मुकद्दस कहता है कि आदम में जो एक जमा का सीगा है, पहला आदम है, उसमें से सारे जो हैं हम आए हैं। इसलिए उसकी नाफरमानी हमारे खून में तासीर करती है और मायूसी तौर पर प्रभाव बनाती है। लेकिन एक बात रखें, उसकी वजह से हम पर मौत है, लेकिन यह मौत जो है हम पर अबदी मौत नहीं लाती। अब मैंने 2 मौतों का जिक्र किया है। पहले मैंने कहा था एक है रूहानी मौत, फिर एक मौत है, कहा जाता है कलाम मुकद्दस में इब्राहिम सो गया और इस दुनिया फानी से 25वें बाब की 8वीं आयत में लिखा हुआ है, पैदाइश की 25वीं बाब। मैं बस इब्राहिम कैसे मिसाल देना चाहता हूं कि हम जरा देखें क्या लिखा है। ये अगर 25वां बाब और उसकी, तब इब्राहिम ने दम छोड़ दिया और खूब बुढ़ापे में नहायत ज़हीफ और पूरी उम्र का होकर वफात पाई और अपने लोगों में जा मिला। देखें क्या कहता है, अब इब्राहिम जमीन पर नहीं रहा। कलाम में मुकद्दस उसे यूं कहता है, यीशु मसीह ने कहा, जब किसी ने कहा कि लाजर मर गया है ना, मैसेज मिला कि लाजर क्या हुआ है? मर गया है। तो यीशु मसीह ने क्या कहा? वो सोता है, मैं जाता हूं जाकर उसे। ये कलाम मुकद्दस में दूसरी मौत का जिक्र है। ये वो मौत है जिसे नींद कहा गया है। आप देखें, ये एक वजह से आती है और वो वजह यह है जो मारूसी गुनाह है जो हमें पाया जाता है, वो हम गुनाह करें या ना करें। कभी आपने गौर किया है? मैंने यहां तक देखा है चर्च में खिदमत करते हुए कि अभी बच्चा पैदा हुआ है, सेहतमंद है, तंदुरुस्त है, वो घर ले गए हॉस्पिटल से और उसकी केयर कर रहे हैं। कुछ हुआ और वो छोटा सा बच्चा था, बड़ा मुश्किल, शायद 2 दिन का होगा या 3 दिन का होगा, तो उसकी डेथ हो गई। उसने कौन सी नाफरमानी कर दी, है ना? उसने कौन सा गुनाह कर दिया, कौन सी गलती कर दी, लेकिन वो मर गया। क्यों? व्हाट्स द रीजन बिहाइंड इट? रीजन ये है कि वो मारूसी गुनाह तासीर करता है और वो हम पर मौत लाता है। ठीक है जी, ये जो मौत है जिसको नींद कहा गया है, ये इसके वसीले से। अब आगे एक और बात, कलाम मुकद्दस में इस मौत से जिसको नींद कहा गया है और इससे पहली मौत जिसका जिक्र किया है जिसको हमने कहा रूहानी मौत है, इन दोनों मौत से बड़ी नो इंसान के लिए खुदा ने यीशु मसीह को भेजा, ताकि यहां हमने मुकाशवे किताब के पहले बाब की 5वीं आयत में लिखा है, उसने अपने खून से क्या किया है? हमें खरीद लिया है और हमें अबदी जिंदगी दी है। क्या लिखा हुआ है? जिसने अपने खून के वसीला से हमको गुनाहों से खलासी बख्शी। क्लियरली 5वें बाब की मुकाशवा 5वें बाब की 9वीं आयत कहती है खून से खरीद लिया।
ٹھیک ہے. اب کیا کہہ رہا ہے یسوع مسیح نے ہماری, اگر آپ کرسی کتاب پڑھیں گے پہلا باب کو, اور شاید یہ کرسی کتاب میں اور افسیوں کتاب میں بھی لکھا ہے کہ ہمارے درمیان, خدا کے اور ہمارے درمیان جو گناہ کی وجہ سے جدائی کی دیوار تھی, ٹھیک ہے, جدائی کی دیوار تھی, اس کو یسوع مسیح نے آ کر مٹا دیا ہے. جو روحانی طور پر بھی ہم مر چکے تھے اور گناہ کر کے, نافرمانی کر کے, میں آدم کی گناہ کی بات نہیں کر رہا, یہ اپنے ذاتی, جو یہاں پر میں ذاتی نافرمانی یا ذاتی فعل کرتے اس کی بات کر رہا ہوں. ہم دور ہو چکے تھے. جب ہم ایمان سے یسوع مسیح کو قبول کرتے ہیں تو اس کے فضل سے ہماری رسائی خدا تک ہوتی ہے, صلح ہو جاتی ہے, اور وہ جدائی کی دیوار, روحانی طور پر مرنا ختم ہو جاتا ہے, اور ہم یسوع مسیح میں آ جاتے ہیں. لیکن ہم نے اب وہ نیند والی موت جو ہے, جسے نیند کہا گیا ہے, جس سے خداوند یسوع مسیح اپنی دوسری آمد پر, غور سنیں, جس سے خداوند یسوع مسیح اپنی دوسری آمد پر جب وہ آئے گا نرسنگا پھونکے گا, اور تمام مردے, پہلا تسلیکیوں 4 باب کی 15, 16 اور 17 آیت میں لکھا ہوا ہے, وہ تمام مردے جو راست باز ہیں, جو ایمان میں مر گئے, سو گئے ہیں, اس کی آواز سن کر اٹھیں گے. ہم جو زندہ راست باز ہوں گے ایک پل میں بدل جائیں گے اور ہوا میں خداوند کا استقبال کریں. کیا ہوا؟ اب دیکھیں, نیند سے جیسے لازر کو یسوع نے جلایا, لازر پھر بعد میں مر گیا, ایسے راست باز مردے جو سوئے ہوئے ہیں, جس کو نیند, جس کو موت آ گئی ہے, اٹھائے جائیں گے اور آسمان پر یسوع مسیح کے ساتھ جائیں گے. اور لکھا ہے مکاشفہ کی کتاب کے 20ویں باب پر لکھا ہے, ایسوں پر دوسری موت کا کوئی اختیار نہیں ہے. میں پڑھنے لگا ہوں, یہ دیکھیے گا, یہ مکاشفہ 20 باب اور اس کی 5ویں اور 6 آیت میں پڑھوں گا. لکھا ہے, آپ نکالے اپنے کلام مقدس میں, لکھا ہے, اور جب تک یہ 1000 برس پورے نہ ہو لیے باقی مردے زندہ نہ ہوئے, پہلی قیامت, یہ یسوع مسیح کی پہلی قیامت کی بات کر رہے, جب یسوع مسیح مردوں آ کر زندہ کرے گا, کہتا ہے دوسرے مردے 1000 برس تک زمین پر رہیں گے. اور لکھا ہے مبارک اور مقدس وہ ہیں جو پہلی قیامت میں شریک ہیں, ایسوں پر دوسری موت کا کچھ اختیار نہیں. ذرا غور سنیں, گناہ کی مزدوری موت ہے, گناہ کی مزدوری موت ہے, گناہ کی مزدوری نیند نہیں ہے, سو جانا نہیں ہے. لیکن اب ذرا غور سنیں, یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھنے والوں میں روٹا ہے. یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھنے والوں میں روٹا ہے پہلا, ہے نا. اب یسوع مسیح کون سی موت ہوا؟ میں چاہتا ہوں کہ ذرا غور سے آپ نے میرے ساتھ رہنا ہے اس بات کو سمجھنے کے لیے. کیا یسوع مسیح نے خدا باپ کی نافرمانی کی؟ نو. کیا اس میں آدم والا گناہ جو ماروسی گناہ ہے وہ پایا جاتا ہے؟ کلام مقدس پہلا کرنتھیوں 15 باب میں سے یہ کہتا ہے کہ وہ پچھلا آدم ہے, وہ دوسرا آدم ہے, وہ پہلا آدم نہیں ہے, وہ آدم میں سے نہیں نکالا گیا. جیسے آپ اور میں پیدا ہوتے ہیں, وہ روح القدس کی قدرت سے حاملہ ہوئی ہے, اور روح القدس کی قدرت سے وہ مولود مقدس خدا کا بیٹا کہلائے گا. دیکھیں, کلام مجسم ہوا, ہمارے درمیان رہا, اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسے باپ کے اکلوتے کا. ٹھیک ہے, تو وہ پہلے آدم میں سے نہیں بلکہ روح القدس کے وسیلہ سے وہ دوسرا آدم ہوتا ہے. اس لیے پہلے آدم والا ماروسی گناہ اس میں ٹرانسفر نہیں ہوتا. جو کلیئر میری بات سمجھ آئی؟ پہلے آدم والا ماروسی گناہ اس میں نہیں آتا, اس لیے اس میں وہ نیند والی موت کا تصور نہیں پایا جاتا جو ہر آدمی پر آتی ہے. ٹھیک ہے جی, اس میں وہ موت کا تصور نہیں پایا جاتا.
ना ही, क्योंकि कलाम मुकद्दस में रोमियो की किताब 5वां बाब और उसकी 19वीं आयत यह कहती है कि उसकी ताबेदारी, फरमाबरदारी इतनी कामिल है कि उसकी फरमाबरदारी में हम खुदा के फरमाबरदार होते हैं। ठीक है, पहला ग्रंथियों पहला बाब और उसकी 18वीं आयत है शायद, मुझे आयत एकदम मेरे ज़हन में करेक्ट नहीं आ रही, तो मुझे देखना पड़ेगा क्योंकि ये ऑनलाइन जा रहा है, तो एग्जैक्टली सही आयत होनी चाहिए। पहला ग्रंथियों और उसका पहला बाब और उसकी ये नहीं 18वीं आयत नहीं है, ठीक है, ये आगे मिल गया मुझे, उसकी 30वीं आयत है, 30वीं आयत, ठीक है। लेकिन तुम उसके तरफ से जो मसीह यस्सु में हो, जो हमारे लिए खुदा की तरफ से हिकमत यानी रास्तबाजी और पकीजगी और मखलसी है। यहां क्या मैं बात बताना चाह रहा हूं आपको कि यस्सु मसीह है ही रास्तबाजी और है ही पकीजगी। कलाम मुकद्दस कहता है उसमें हरगिज कोई छल नहीं था उसके मुंह में, ठीक है, उसमें कोई गुनाह नहीं पाया, ठीक है, ना तो उसमें मारूसी गुनाह आया और ना ही उसकी जुबान ने कोई गुनाह किया, ना ही उसके फेल ने कोई गुनाह किया, इसमें उसमें कोई खुदा नहीं पाया, तो भी कलाम मुकद्दस कहता है वो बन है ना। क्या किताब कभी हमने पढ़ा है यशायाह की किताब 53 बाब, अभी तब हम यीशु मसीह की मौत के बारे में और रेजरेक्शन के बारे में बात करेंगे, मुसलुबियत के बारे में बात करेंगे, पढ़ेंगे, ठीक है। तो भी खुदावंद को पसंद आया कि उसे कुचले और उसने हमारी, देखिए, और उसने हमारी नाफरमानियां, हमारे गुनाह, हमारी नारास्तियां उस पर लाद दी। गौर सुने, हमारे गुनाह, हमारे नाफरमानियां, हमारी नारास्तियां उस पर लाद दी। रोमियो की किताब 5वां 8 है कि जब हम गुनाहगार ही थे हैं, तो मसीह हमारी खातिर मुआ। रोमियो 5 बाब, ये मैं अभी निकाला है, ये देखो उसकी 30 है, यह क्योंकि जब हम कमजोरी थे तो मसीह ऐन वक्त पर मसीह बेदीनों की खातिर मुआ। यहां इसकी 8वीं आयत में लिखा है खुदा अपनी मोहब्बत खूबियां पर यूं जाहिर करता है कि जब गुनाहगार ही थे तो मसीह हमारी खातिर मुआ। नामी है, बस जब हम उसके खून के बायस अब रास्तबाज ठहरे तो उसके वसीला से गस्बे अल्लाही से जरूर बचेंगे। किसके वसीला से? आप और मैं किसके वसीला से गस्बे अल्लाही से बचेंगे? कलाम मुकद्दस कहता है यीशु मसीह के वसीला से। क्यों? क्योंकि हम पर जो गस्बे अल्लाही आने वाला था वो उसने उस पर लाद दिया, उसे वो मौत, यीशु मसीह को जो मौत मिली कलाम मुकद्दस में, जहां मैं मुकाशवा की किताब के 20वें बाब की तरफ जाना चाहता हूं। जो मुकाशवा की किताब के 20वें बाब में जो दूसरी मौत है, जो गुनाह की मजदूरी मौत है, ये गुनाह की तासीर से आती है, जिसको हम अलैदगी और नींद कहते हैं। ये गुनाह की मजदूरी है जो यीशु मसीह में हमें आती है। और वो देखिए मैं पढ़ने लगा 20वां बाब उसकी 14वीं और 15वीं कलाम मुकद्दस में लिखा है फिर मौत और आलमिरवा आग की झील में डाले गए। ये आग की झील दूसरी मौत है। क्या लिखा है? फिर मौत और आलमिरवा आग की झील में डाले गए। ये आग की झील दूसरी मौत है। और जिस किसी का नाम किताब हयात में लिखा हुआ ना मिला वो आग की झील में डाला गया। और किताब हयात में नाम कब लिखा जाता है? जब हम यीशु मसीह पर ईमान लाते, कबूल करते, गुनाहों की तरह से तौबा करते, उसमें बपतिस्मा लेते और फिर उसमें जिंदगी गुजारते हैं ना। तो फिर किताबें यीशु मसीह के वसीले से लिखना गस्बे अलाई आग की झील, जिसे जहन्नम की आग कहा जाता है, उससे कौन बचाता है हमें?
क्यों बचाता है? क्योंकि उसने हमारे लिए हमारे गुनाहों को अपने ऊपर लेकर मौत को सहा, और उस मौत से यीशु मसीह क्या होता है? मरकर जिंदा होता है, इसलिए वो पुल उठा है। गॉट द पॉइंट? वो मौत जो आनी हम सब पर है, जो अबदी मौत, जिसको दूसरी मौत कहा गया है, उस मौत से वो जिंदा होता है, इसलिए वो पुल उठा है। अब उस पुलोठे के बाद हम जो उस पर ईमान लाएंगे, उस मौत का मजा ही नहीं चखेंगे, हम उसमें जाएंगे ही नहीं, क्योंकि वो हमारे लिए उस गज़ब इलाही को झेल चुका है। तो कलाम मुकद्दस में मुकाशफा की किताब के पहले बाब की 5वीं आयत जब यह कहती है कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठने वालों में पुलोठा है, तो आप और मैं गुनाह की वजह से मुर्दा ही हैं, हम चलती फिरती कब्रें हैं। लेकिन जब यीशु मसीह में ईमान ले आते हैं, तो आज से, अभी से, उसी वक्त से जब हम ईमान लाते हैं, हमारी अबदी जिंदगी सामने। लेकिन थोड़ी देर के लिए मौत का वक्त कब आता है, तो ये वो एक इंटरलोड या एक वक्फा है जिसमें हम आराम करते हैं, मर जाते हैं, लेकिन जब वो आएगा तो दोबारा जिंदा करेगा हम, और हमें आसमान पर ले जाएगा। ये कुदरत सिर्फ मेरे यीशु को हासिल है, किसी को नहीं हासिल। ये कुदरत सिर्फ यीशु मसीह को इसलिए हासिल है, जरा गौर सुनिए क्यों हासिल है ये कुदरत उसको। वो खुदा है, खुदा की सारी कुदरत, सारे इख्तियार रखते हुए वो आप और मुझ जैसा बन जाता है, ताकि हमें गुनाह और अब्लीस के हाथ से अपनी फर्मा बरदारी और रास्तबाज़ी से छुड़ा सके, और हम उसमें अबदी जिंदगी पा सके। अजीजों, दोस्तों, खुदा के मुकद्दसों, यीशु मसीह मुझे और आपको दूसरी मौत, जो आग और झील की मौत है, से बचाने पर कुदरत रखता है। मेरे नेल्स नक रहे हैं। जब कुदरत रखता है, तो आए हम ईमान से उसे कबूल करें, आए हम इकरार करें अपनी जिंदगी को उसके सामने, आए हम अपना आप उसे दें, ताकि इस दुनिया में इस वक्त वो जो जुदाई की दीवार है उसे हटा दे, और खुदा के साथ हमारी सुलह। दूसरा ग्रंथियों 5 बाब की 18, 19, 20 आयत में देखें तो आपके सामने ये बात आएगा, और मैं पढ़ने लगा हूं। ये दूसरा ग्रंथियों 5वां बाब, एंड की बात है, और फिर हम इसको खत्म करेंगे। दूसरा ग्रंथियों 5 बाब मिले क्या है 18वीं आयत से, और सब चीजें खुदा की तरफ से हैं, जिसने मसीह के वसीला से आपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया, और मेल मिलाप की खिदमत हमारे सुपुर्द की। मतलब यह है कि खुदा ने मसीह में होकर अपने साथ दुनिया का मेल मिलाप कर लिया, और उनकी तकसीरों को उनके ज़िम्मे ना लगाया, और उसने मेल मिलाप का पैगाम हमें सौंप दिया। बस हम मसीह के एलची हैं, गोया हमारे वसीला से खुदा इल्तमास करता है कि मसीह की तरफ से मिन्नत करते हैं, खुदा से मेल मिलाप कर लो। अब अगली बात देखिएगा 21वीं आयत, जो बहुत ही शानदार है। जो गुनाह से वाकिफ ना था, उसी को उसने हमारे वास्ते गुनाह बनाया। गुनाहगार नहीं, वो गुनाह से वाकिफ नहीं है, उसने गुनाह नहीं किया, उसमें कोई नाफरमानी नहीं है, तो भी क्योंकि गुनाह की मजदूरी मौत है, तो भी वो हमारे गुनाह को अपने ऊपर लेकर गुनाह बना और मौत लेता है, ताकि हम मौत से बच जाए, ताकि मैं और आप मौत से बच जाए। अजीजों, यीशु मसीह मुझे और आपको अबदी जिंदगी देता है। जब हम ईमान से उसमें आते हैं, तो अबदी जिंदगी मेरी और आपकी है। खुदा चाहे जाता है कि हम उसमें उसके फजल से अबदी जिंदगी, और ये मेरी दुआ है कि काश खुदा हम सबको जो आज ये कलाम सुनते हैं ऑनलाइन, अभी या फिर जब भी कोई सुनता है, या अभी यहां बैठे हुए सुनते हैं, यीशु मसीह में हम अबदी जिंदगी पाए, ताकि वो मौत जो हमने मरनी है उसने लेकर हमें अबदी मौत। इसलिए कहता है, देखें पता क्या लिखा है मुकाशफा किताब के पहले बाब में, वो आयत अभी नहीं मैंने पढ़ी, अब पढ़ने लगा 18वीं और 19वीं लिखा है
जरा मैं ऊपर से पढ़ता हूं 17वीं आयत के मिडल में से, और उसने ये कहकर मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखा कि खौफ न कर, मैं अव्वल और आखिर हूं। यीशु मसीह कह रहा है यूहन्ना आरफ को, जो उसका शागिर्द है, जिस पर रोया उतरती है, जो उसे देखता है, कहता है खौफ न कर, मैं अव्वल और आखिर हूं और जिंदा हूं, मैं मर गया था और देख अब्दुल-उबाद जिंदा रहूंगा। मैं जिंदा हूं, मैं मर गया था और अब्दुल-उबाद यानी हमेशा 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 जिंदा रहूंगा, और मौत और आलम रवा की कुंजियां मेरे पास है। मौत से जिंदा करने का इख्तियार है, और कब्र आलम रवा, कब्र को कहा गया है हेड्स, यहां लफ्ज है शियाउल, इसका अब्रानी लफ्ज है जिसको कब्र को कहा गया है। कहता है उस कब्रों को खोलने का इख्तियार मेरे पास है और किसी के पास नहीं। जिसके पास कुंजी है वही ताला खोलेगा, है ना, जिसके पास इख्तियार, उसका आसमान और जमीन का खोले इख्तियार मुझे दिया गया है। कहता है कि खोलेगा। जब यीशु मसीह के पास ये कुंजी है, ये इख्तियार है, तो क्यों हम रुके हुए हैं? हम अपनी जिंदगी उसे दें ताकि उसमें आकर हम अबदी जिंदगी पाए। लिखा और जितनों ने उस पर ईमान लाए उनको उसने हमेशा की जिंदगी। खुदा आपको और मुझे और हम सबको यीशु मसीह पर ईमान लाने और उसमें कायम रहने से अबदी जिंदगी। आमीन। खुदावंद तेरा शुक्र हो तेरे फसल के लिए, तेरे रूह के मसा के लिए, राज के कलाम के लिए बख्श दे और अपनी पनाह में रख। तेरा शुक्र हो तेरे नाम यीशु मसीह। हम सब खुदा उनकी हमद साइश में आगे बढ़ते हुए गिर जाएंगे। मुक्ति दिलाएंगे, सुना शांति दिलाएंगे सुना, और इसी के दौरान अपने हृदय जात खुदा के हुजूर में मुक्ति दिलाए ये सुना, शांति दिलाए ये सुना, तालियों के साथ मुक्ति दिलाए ये सुना, शांति दिलाए ये सुना, मुक्ति दिलाए, सब मिलकर गाएंगे, शांति दिलाए ये सुना, यीशु दया का बहता सागर, यीशु दया का बहता सागर, यीशु है दाता महान,
यीशु नाम शांति दिलाए यीशु नाम मुक्ति दिलाए यीशु नाम शांति दिलाए यीशु नाम क्रूस पर अपना खून बहाया क्रूस पर अपना खून बहाया सारा चुकाया दाम सारा चुकाया दाम सारा चुकाया दाम सारा चुकाया दाम मुक्ति दिलाए यीशु नाम शांति दिलाए यीशु नाम मुक्ति दिलाए यीशु नाम शांति दिलाए यीशु नाम शांति दिलाए यीशु नाम मुक्ति दिलाए यीशु नाम शांति दिलाए यीशु नाम Amen. Amen. Thank you very much for wonderful song. So blessed. Praise God. आखिरी दुआ से पेशतर चंद बातें हैं जो मैं चाहता हूँ कि हम पहले तो मैं मशहूर हूँ खुदावंद आज के दिन उसकी सलामती और बरकत मल्टी कल्चरल फैमिली सर्विस सेंटर की खिदमात के लिए जो वो हमारे लिए कर रहे हैं, मेरे लिए, आपके लिए और अबादत के इस प्रोग्राम उर्दू मिनिस्ट्री। अगर मुझे सही तरह याद हो तो जनवरी 2017 वैसे दिसंबर से शुरू मैंने कर दिया था लेकिन दिसंबर 2016 में लेकिन जनवरी 2017 के पहले दिन से मैं ऑफिशियली तौर पर यहाँ काम करने के लिए आया। हेलो मैं एक काम करने के लिए यहाँ आया और हमने काम शुरू किया। मैं मेरी बेटी अमाना हम यहाँ आते थे, फिर हमने इनिशियल स्टेजेस पे इसको शुरू किया जब तो कुछ दोस्त हमारे साथ थे जो हमें यहाँ अनसन में हमने विजिट किया और मिले हमें और हमने उनको दावत दी। उनमें एक जो दोस्त थे वो थे इमरान मुश्ताक साहब। मैं उनका मशहूर हूँ कि पहले दिन से आज के दिन तक एक तो हमने बहुत खूबसूरत फ्रेंडशिप डेवलप की और एक दूसरे को जाना, एक दूसरे के बहुत सारे निजी मामलात को जाना और उसके लिए दुआ की और फिर इससे बढ़कर ये कि हम खुदावंद के कलाम में पढ़ते रहे। मैं इसके लिए खुदावंद का मशहूर। मैं भाई इमरान मुश्ताक साहब के इस बात के लिए जो पहले दिन से आज तक वो खुदावंद के कलाम की कदर करते रहे और उसके लिए बड़े सपोर्टिव रहे, शुक्रगुजार। मैं चाहूंगा कि वो सामने आए और तस्वीर भी बनाएंगे जब वो सामने आएंगे, है ना। ये मुझे इस बात के लिए मेरा दिल जो है वो इतना खुश नहीं है कि वो पाकिस्तान जा रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान जाना भी जरूरी है क्योंकि उनकी फैमिली है, उनके अपने कुछ जाती मामलात हैं। और मैं सर आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ, आपकी मोहब्बत का, आपके प्यार का और सारी सपोर्ट। There are many things I can say, लेकिन मैं चाहूंगा कि चंद बातें ये कहें, लेकिन उससे पेशतर हम एक छोटा सा अप्रिसिएशन गिफ्ट लाए हैं। जब भी ये रखेंगे तो इन्हें याद आएगा और मैं चाहूंगा हमारे कलीसिया के जो हेड एल्डर हैं वो आए और वो इनको पेश करें। तस्वीर आप बना सकेंगे और it's a very small a token of our love, but still it will remind him and us that we love you, and we'll keep praying for you and for your family, and we'll hope to see you someday.
یہ ایک شرٹ ہے جو ہم انہیں دے رہے ہیں اینڈ آئی ہوپ کہ انہیں یاد. میں چاہوں گا کہ چند الفاظ آپ بھی اگر بولنا چاہیں تو پلیز. یسوع مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو. خداوند کا شکر ادا کرتا ہوں گزرے وقتوں کے لیے آج کے دن تک. کچھ چیزیں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں. کوریا سب سے پہلے بہت اچھا کنٹری ہے. یہاں کے لوگ بہت اچھے ہیں. بڑی برکت چاہتا ہوں اس کنٹری کے لیے. میں مجھے دنیا میں پوری دنیا میں بہت سے ممالک میں ایز بزنس مین اپرچونٹی اویل کرنے کا خدا مجھے موقع بخشا. بڑی سکسیس ہوئیں, فیلئرز بھی ہوئیں, اور ایٹ اینڈ واپس پاکستان میں آیا اور سارا سمجھ میرا دیوالیہ ہو گیا وہاں پر پاکستان میں. تو بڑی پریشانی کا عالم رہا, بڑی افسردگی کا عالم رہا. خدا نے بہت اچھا سب کچھ دکھایا, بڑا عروج دکھایا. تو ایک دم فیلئر آنا انسان کی زندگی میں وہ بہت تکلیف دہ ہوتا ہے, بڑا تکلیف والا مرحلہ ہوتا ہے. تو میں خداوند کے آگے جھکا, گڑ گڑایا, خداوند کے آگے التجا رکھی. خداوند تو نے سب کچھ دیا لیکن سب کچھ ایک دم غائب ہو گیا, ختم ہو گیا. تو اس وقت میں, میرے برے وقت میں, میری وائف جو کہ گورنمنٹ جاب کرتی ہیں, انہوں نے مجھے بڑی سپورٹ کی. تو پھر خداوند نے میری التجاؤں کو سنتے ہوئے میرے لیے در کھولا, اور وہ در تھا ساؤتھ کوریا. ساؤتھ کوریا میں میں نے آ کے خداوند کے فضل سے بڑی محنت کی, بڑی انتھک محنت کی, دن رات محنت کی. خداوند کے فضل سے بہت کچھ یہاں سے کمایا, بنایا. میں بہت خوش ہوں اس سارے وقت کے لیے, جتنا وقت بھی میں نے یہاں ملک کوریا میں گزارا. دوست احباب بھی بنے یہاں پر, چرچ ایکٹیویٹیز بھی رہیں, تو سب بہت اچھا رہا. تو اب جب میں واپس جانے کو ہوں تو دل پھر برا پڑتا ہے. ایک اچھی انوائرمنٹ تھی, اچھے دوست تھے, چرچ ایکٹیویٹیز بہت تھیں. تو جن کاموں میں خداوند راضی ہو, میں نے سب چیزیں اپنی خداوند کے آگے رکھی ہیں. جب میں اچھا وقت تھا تب میں شاید اتنا خداوند کو یاد نہیں کرتا تھا, خداوند کے آگے اتنا نہیں جھکتا تھا. تو شاید خداوند نے میرے لیے یہ مختص کیا تھا کہ میں یہاں آؤں, اپنے ہاتھوں سے محنت کروں, اور یہ سارا جو میں نے یہاں محنت مشقت کی ہے یہ میں اس کو یہاں پر کروں, سیکھوں. یہ میرا سیکھنے کا یہ سب سے بڑا یہ وقت تھا یہاں پر. تو بہت بڑا سبق لیا میں نے. تو میں آپ سب کا شکر گزار ہوں, دوستوں کا, بھائیوں کا, جن کے ساتھ میرا بڑا اچھا وقت گزرا. بالخصوص ہمارے بڑے پیارے پاسٹر نذیر صاحب کا بہت خوبصورت رفاقت ان کے ساتھ رہی, بہت خوبصورت وقت ان کے ساتھ گزرا. میں ان کے لیے بہت دعا گو ہوں, ان کی فیملی کے لیے بہت دعا گو ہوں. خداوند اپنی برکات سے مالا مال کرے آپ لوگوں کو. آپ سب کے لیے بڑی برکت چاہتا ہوں. بہت خوبصورت یہاں وقت گزرا. خداوند کا شکر ادا کرتا ہوں. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ سر, یہ آپ کے ساتھ رہے گا. بہت شکریہ. ونس اگین ہم بھائی عمران مشتاق کے اپنے تہ دل سے شکر گزار ہیں, اور ہماری دعا ہے کہ خداوند آئندہ آنے والے ایام یہاں اور پاکستان انہیں
और ख़ास तौर पर उनके घराने को, उनकी अहलिया को, उनकी बेटी को खुदा बरकत दे। और दुआ है कि जब ये जाते हैं तो खुदा वहाँ भी अपना फजल इसी तरह उन पर रखे और कामयाबी से अच्छा, एक और अनाउंसमेंट है, और वो भाई एजाज जो है मजलिस एजाज सब करना चाहते हैं। मैं चाहता हूँ कि वो भी आने करने, फिर हम दुआ करेंगे एक दफा ही। थैंक यू सो मच भाई साहब। सबसे पहले सब भाइयों को बहनों को मेरी तरफ से सलाम, और खुदा यीशु मसीह में आप सबकी सलामती चाहते हैं। एक्चुअली कल के लिए हमने एक स्पेशल थैंक्सगिविंग प्रेयर रखी है। आप सबको पता होगा कि सिर्फ एक मैसेज हमने फेसबुक पे डाला था जो मेरे बड़े ताया थे, वो खुदा में सो चुके हैं पिछले वीक के। उससे 2 वीक पहले 2 और डेथ हुई थी हमारे ख़ानदान में, जिनको मैंने पब्लिश नहीं किया था। तो यानी कि 1 महीने में 3 डेथ हमारे ख़ानदान में हुई हैं। तो मैं चाहता हूँ कि हम सब मिलकर हमारे घरानों के लिए और जो हमारे लोग खुदा में सो चुके हैं उनके ख़ानदान के लिए हम सब मिलकर दुआ करें। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, मेरी तरफ से आपको इनविटेशन है कि आप हमारे साथ मिलकर सुबह कल 11 बजे और फ्लोइंग उर्दू मिनिस्ट्री में आप हमारे साथ मिलकर खुदा उनके नाम की इज्जत और जलाल दें। और हम चाहते हैं कि हम मिलकर जो दुआ करेंगे वो दुआ खुदा हमारी सुनता है। और मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है, क्या ही खूब बात है कि बाहम भाई मिलकर खुदा उनके नाम की इज्जत और जलाल दें। और जब हम सब मिलकर दुआ करते हैं तो यकीनन बंद दरवाजे खुल जाते हैं। और हम उन लोगों के लिए भी जिनकी प्रॉब्लम्स हैं मुल्क कोरिया में या प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हैं, उनके लिए भी हम सब मिलकर दुआ करेंगे। हमारा ईमान है खुदा में मजबूत होते हुए कि खुदा सारी रुकावटें तोड़ने की कुदरत रखता है। आमीन। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। क्योंकि खानदान में कुछ मसाइल, खानदान में कुछ लोग जो हैं खुदावंद में सो गए, अमवात की वाक़या होने की वजह से ये एक खास इबादत का एहतमाम कर रहे हैं कल 11 बजे उर्दू ओवरफ्लोइंग चर्च के प्लेटफॉर्म से। और आपको दावत है कि आए और उनके गम में शरीक हों और दुआ में शामिल हों। आए हम सब अपने सरों को झुकाएं और दुआ करें। आज की खास दुआ जो है हम भाई मूसा उसके गिराने के लिए, बहन सैदा बीबी है, राइट भाई, सईदा बीबी, और वो अब बीमार हैं, हॉस्पिटल में दाखिल हैं, उनके लिए। और अपने दोस्त अहबाब जो कि बेरोजगार हैं और अब रोजगार खुल रहा है, हम उनके लिए दुआ करेंगे ताकि खुदावंद जो है उन्हें रोजगार अता फरमाए। भाई आजाद उसके गिराने के लिए, क्योंकि इन अमवात की वजह से जो गम और जो अफसोस है वो यीशु मसीह में तसल्ली पा सकें। मैं अपने लिए और अपने घराने के लिए दुआ करूंगा, खासतौर पर खुदावंद अपना रहम व फजल रखे। और फिर उमाइम और शहजाद और उसकी अहलिया सबको बुखार और जुकाम है, इसलिए वो आज हमारे साथ शामिल नहीं हो सके। हम उनके लिए भी दुआ करेंगे और बाकी कलीसिया के लोगों के लिए, और खासतौर भाई तारक की अहलिया के लिए, क्योंकि उसने अप्लाई किया है कि ग्रेजुएशन को अटेंड करने के लिए, ताकि खुदावंद जो है वो मुमकिन करे कि वो भी यहाँ आ सकें और अटेंड कर सकें। आए हम सब अपने सरों को झुकाएं। कदूस रहीम जलाली अज़ली और अतीबा, तेरा शुक्र, तेरे फजल, तेरी बरकत, तेरी कुदरत, तेरे जलाल और तेरी रहमत। खुदावंद तेरे मशकूर हैं आज के दिन की। मिन्नत करते हैं कि तू रहम, मिन्नत करते हैं कि तू फजल। खुदावंदा जिस तरह हम तेरे हजूर कुछ दरख्वास्तें पेश करते हैं, क्योंकि तू कुदरत से बड़ा है और शिफा तुझसे ज्यादा। खुदावंद मैं भाई मूसा को तेरे हजूर उसकी सारी खुदावंदा दिली और दिमागी हालत को तेरे हजूर तो खुद अपनी कुदरत से अमन, इत्मीनान और तसल्ली को भर, सारे वसवसों को और अपनी शैतानी कुव्वत और तसीरों को अपने बंदा से दूर कर, उसके घराने से दूर कर, कि बेटे को खुदावंद ने मियां को सेहत तंदुरुस्ती से, बेटी को और की अहलिया को, बेटी रीटा को खुदावंद ने इस घराने पर खुदावंदा तो अपने नजरे करम कर, उनकी कोताहियों को खुदाओं को माफ फरमा दे और रहम करके सलामती बख्श, सेहत खुदावंदा तेरी बेटी और अपनी बहन सईदा बीबी को जो हॉस्पिटलाइज हो, उसका ईमान है कि जब यहां से हम दुआ करेंगे तो तू अपने कुदरत से उसे
वहां पाकिस्तान में शिफा दे। खुदावंदा अपनी कुदरत वाले हाथ को बढ़ा दे और मौजूदा तौर पर खुदावंदा उसे उठा दे, सलामती रहम फजल। खुदावंद तेरे हुजूर मिन्नत करते हैं। खुदावंदा मैं अपने सारे मामलात को तेरे तू जानता है और तुझसे कोई चीज बाइद नहीं, कोई छुपी भी नहीं है। तुझसे मिन्नत करते हैं कि इब्लीस और उसकी सारी कुव्वतों और तस्वीरों को खुदावंदा तू शिकस्त दे और अपने नाम को इजरा दे। माफ फरमा और फजल। खुदावंदा मैं तेरे हुजूर मिन्नत करता हूँ भाई एजाज उसके घराने की, उनकी सलामती की, अमन इत्मीनान के लिए। जो गम है खुदावंदा अजीजों के बिछड़ जाने का, खुदावंदा वो तेरे रूह कुद्दस के वसीला से तसल्ली पाए और उस मुबारक उम्मीद में रहे कि तू जल्द आने वाला है। खुदावंदा मैं तेरा मुश्किल भाई इमरान की उसके उस वक्त के लिए जो उसने कोरिया में किया, खुदावंदा तेरे फजल के लिए जो तूने उस पर उसके घराने पर किया और उन्हें खुदावंदा बर्खास्त से, मुसीबतों दुखों से, फाइनेंशियल तंगी से निकालकर खुदावंदा तूने उठा कर किया। तेरा शुक्र। मिन्नत करता हूं कि अपने बंदा को और उसकी अहलिया को, उसकी बेटी को, खासतौर पर उनकी अहलिया के लिए तंदुरुस्ती, सलामती, तेरी शिफा मांग, तेरा रहम मांग। खुदावंदा हाजिर जमात को तेरे हुजूर ला, बेरोजगारी को दूर कर, काम मुहैया सलामती ला। खुदावंदा हम तेरे हुजूर आते हैं और तुझसे मिन्नत करते हैं, अपने लोगों को सुन, बरकत दे, हमारी खताओं को फजल। खुदावंदा आज का कलाम हमारी जिंदगी में जो बोया गया है वो ईमान से 30, 60 और 100 गुना खुदावंदा इस हदिये नजराने के लिए तेरे हुजूर तेरे शुक्र देने वालों को जो नहीं दे सकते उन्हें इतना दे कि वो फराग दिली से तेरे हुजूर हदिये दे लेखनी और चंदे तेरे नाम बख्श दे और फजल कर और हम सब के साथ यीशु मसीह के नाम से मांगते हो आमीन। जिसने हमें ये सिखाया है हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाह आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, जिस अपने कर्जदार के कर्ज मुआफ करते हैं तो हमारे कर्ज में मुआफ कर, हमें स्मैश में ला बल्कि बुराई से बचा। ये जो बादशाह गुजर जलाल वेश हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक की रफ़ाक़त और शराकत अब से लेकर हमेशा तक इस जमात के साथ और तमाम ईमानदारों के साथ। आमीन। खुदा यीशु मसीह के साथ।